Hello, good morning, 9th standard students. Today we will continue with the work and energy chapters of science. अभी अगर हम लोग इस पिक्चर्स में देखेंगे तो एक लड़की होमवर्क कर रही है. द बॉय इज़ प्लेइंग विद द बॉल. थर्ड girl is watching movies, watching cartoons. And fifth, that man is handling the luggage. Correct. These five photos, five pictures we can see. In all pictures some energy is used in doing homework. Mental energy and physical energy is using in playing balls. बराबर है, समझ में आ रहा है मुझे? In playing balls physical energy is used. Watching movies physical as well as mental energy is used, and in this physical energy is used, right? Means some work is going on in all the pictures. Now what is the meaning of work? It is given in the textbook. Work is said to be done when force applied on object. वर्क कभी होता है, वर्क कैसे हुआ? व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब फोर्स लगाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे वर्क. करेक्ट. तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट कॉज डिस्प्लेसमेंट. हाँ, वर्क कभी होता है जब फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको बोलते हैं वर्क. समझ गया पहला पॉइंट? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इज दिस क्लियर? नाउ इन दिस पिक्चर्स वन lady is trying to push the object from A points to B point. In B pictures we can see that one boy is just pulling the toys with the string, and in another pictures we can see small van is tolling by the bigger van. In all these three pictures if we see that the twice displacement and their force has different direction. Force is applied from the upward direction. Force is applied from upward direction, but displacement is in horizontal direction. Correct. Then force and displacement have different direction, different position. Same here, force is coming from the upward direction but displacement is in horizontal direction. That's why here also direction of force and direction of displacement is different. Is this clear? Then from all these pictures what we can understand, how much work should be done, how much work will be done. Then the answer for that, it is written here. When the force and displacement are in the same direction. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, द वर्क डन व फोर्स इज पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर स्विमिंग इन द रिवर एंड द फ्लो ऑफ रिवर इज सेम इन दैट डायरेक्शन इन विच आई एम स्विमिंग, राइट. जिस साइड में स्विमिंग कर रहा हो उस साइड में फोर्स, पानी का फोर्स है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ये रहेगा, वर्क रहेगा. बिकॉज when the force and displacement are in same direction, force और displacement अगर same direction में रहेगा तो work done may be positive. when the force and displacement are in opposite direction, किस direction में रहेगा? opposite. जिस side में swimming करके जा रहा हो उसके opposite पानी का force है, तो negative work जाएगा. when the applied force does not any displacement, force की वजह से कोई displacement नहीं हो रहा है, then the work is zero. work will be zero. is this clear? तो ये आप लोग को आंसर याद रखना है. पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क, ये तीनों पॉइंट्स. नेक्स्ट इज इन दिस एग्जांपल सम एग्जांपल इज रिटन. इफ अ पॉट हैविंग अ प्लांट इज kept in dark room, the plant languishes. On increasing the volume of music system or TV beyond a limit, the vessels in the house start vibrating. Collecting sunlight on paper with the help of convex lens burns the paper. ऐसा क्यों होता है? अभी पॉट जो है, प्लांट्स का पॉट जिसमें प्लांट है, अगर हम लोग उसको डार्क रूम में रखेंगे तो प्लांट सूख जाएगा. सेकंड में होता है, अगर टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा कर देते हैं कैपेसिटी के बाहर, तो आजू बाजू का जो बर्तन है वो वाइब्रेट होने लगता है. थर्ड है, सनलाइट कलेक्ट किया मैग्नीफायर से तो कागज़ जलने लगता है. तो ये ऑल दिस थिंग हैपन बिकॉज ऑफ द एनर्जी. इसकी वजह से होता है एनर्जी. प्लांट्स को एनर्जी नहीं मिलता है इसलिए डार्क रूम में सूख जाते हैं. वाइब्रेशन इज़ वन ऑफ द एनर्जी. Means coming from the sound, that is energy. Sunlight is also one of the energy. That's why all these things is happened because of the energy.
एनर्जी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? तो एनर्जी का मीनिंग है कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी बॉडी की कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? एनर्जी। द यूनिट ऑफ एनर्जी आर सेम। एसआई यूनिट सिस्टम जूल, वाइल दैट इन सीजीएस सिस्टम ईआरजी। एसआई सिस्टम में जूल होता है और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? ईआरजी। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी. What will happen in the following cases? A fast cricket ball strike the stump. Striker hit the coin on the carom board. On marble strike another in game of marble. देखो, अगर क्रिकेट बॉल, फास्ट क्रिकेट ने क्या किया, स्टैम्प को टक्कर दिया, स्टैम्प टूट जाएगा या स्टैम्प उड़ जाएगा? स्ट्राइकर ने कॉइन को हिट किया तो कॉइन हिलने लगेगा या मूव हो जाएगा? मार्बल से एक गोटी से दूसरी गोटी को टक्कर मारा तो जो गोटी रेस्ट पोजीशन में है वो हिलने लगेगी, वो हिल के दूसरी जगह चली जाएगी। तो इस सब केस में क्या होता है? स्ट्राइकर में, अभी क्रिकेट बॉल में एनर्जी कहाँ से आई, स्ट्राइकर में एनर्जी कहाँ से आया, और मार्बल में एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी स्पीड की वजह से है। किसकी वजह से? क्रिकेट बॉल में एनर्जी, हमने ज़ोर से फेंका, इसके लिए उस क्रिकेट बॉल के अंदर एनर्जी आ गया। स्ट्राइकर को ज़ोर से हिट किया, इसलिए स्ट्राइकर को ज़ोर से एनर्जी आ गई। मार्बल को मैंने स्पीड दिया, इसके लिए मार्बल को भी एनर्जी आ गई। इफ़ एनर्जी कम्स बिकॉज ऑफ द स्पीड, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? मीनिंग इज गिवन हियर. द मीनिंग इज वेयर एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. मोशन मतलब स्पीड. एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. इज दिस क्लियर? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट. K is equal to Fs. Is this clear? Now next example, arrow is released from stretched bow. Water kept on height flows through pipe into the tap below. Compressed spring is released. मैंने एरो को बॉ से छोड़ा, स्ट्रिंग को खींच करके, वाटर को बहुत हाइट से नीचे गिराया, स्प्रिंग को ऐसे दबा के रखा और उसको रिलीज़ किया। इस तीनों में एनर्जी आती है। एरो को स्ट्रेच किया, इसके लिए उसमें एनर्जी आई। वाटर का पोजीशन एकदम हाइट पे था, इसके लिए उसमें एनर्जी आई। और स्प्रिंग को दबाया, इसके लिए उसमें एनर्जी आई। मतलब उसकी पोजीशन की वजह से अगर उसमें एनर्जी आती है तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? काइनेटिक में क्या होता है? स्पीड की वजह से आता है, लेकिन पोटेंशियल में क्या होता है? पोजीशन की वजह से आता है एनर्जी। देखो यहाँ पे मीनिंग क्या दिया? The energy stored in object because of specific state or position is called potential energy. Energy stored in object because of the specific position, that is called potential energy. समझ गया क्या? Next topic is transformation of energy. Energy क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है। क्या होता है? एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं होता है, वो क्या होता है? चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब ये क्रैकर्स फोड़ते हैं दिवाली के टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या होता है? उसके अंदर जो केमिकल होता है वो एक्सप्लोडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? एक्सप्लोडिंग एनर्जी, मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। तो एनर्जी क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, एक क्रिएट नहीं होता है। समझ में आया क्या? देखो वही लिखा है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक्सप्लोडिंग फायर क्रैकर्स कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी into the light, sound and heat energy. Exploding the firecrackers, पटाखे को जब हम फोड़ते हैं तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? लाइट में, साउंड में और हीट एनर्जी में। इज दिस क्लियर? देखो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कभी हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? हीट में। और थर्मोकपल क्या करता है? हीट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी लाउड स्पीकर क्या करता है? साउंड में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब दिस आर द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। सोलार सेल क्या करता है? लाइट को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। लेकिन इलेक्ट्रिक लैम्प क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है। बराबर है कि? तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। इज दिस क्लियर? इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी इसका मतलब क्या होता है? एनर्जी कभी भी जनरेट नहीं होता है,
एनर्जी अपना पोजीशन, अपना फॉर्म चेंज करता है। जैसे सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो ट्री प्लांट्स क्या करते हैं, अपने फूड बनाने के लिए यूज़ कर डालते हैं, मतलब एनर्जी यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है किसी किसी में साउंड एनर्जी पे यूज़ होता है। तो एनर्जी देखो लिखा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। एनर्जी ख़त्म नहीं होता है, न तो उसको कोई क्रिएट कर सकता है। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन इनटू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। दस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स रिमेंस कांस्टेंट। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है पूरे वर्ल्ड में वो कांस्टेंट है, सेम है, बढ़ भी नहीं सकता है और कम भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल। इफ़ वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट, अगर हाइट से हमने कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिराया, इट गेट्स पुल्ड टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो अर्थ के पास क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग सोली मतलब अकेला, सोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है, इट्स सेड टू बी फ्री फॉल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। इज दिस क्लियर? नाउ द पावर। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 200 मीटर रेस लगाने 100 मीटर रेस लगाने को बोला। 3 बॉयज़ हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तीनों क्या एक साथ पहुँचेंगे टारगेट पे? कोई कम पहले पहुँचेगा, कोई ज़्यादा जल्दी पहुँचेगा, कोई बहुत लेट पहुँचेगा। तो सबके काम करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है ना, तो काम करने का जो रेट है वो अलग अलग है, उसी को बोलते हैं पावर। उसको क्या बोलते हैं? तो लिखा है फास्ट और स्लो रेट ऑफ वर्क डन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पावर। फास्ट और जो स्लो रेट होता है काम करने की क्रिया को, इसको बोलते हैं पावर। पावर इज़ द रेट एट विच वर्क इज डन। पावर क्या होता है? एक रेट होता है जिसमें काम होता है। डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन टाइम टी। अगर डब्ल्यू काम हुआ कितने टाइम में? टी टाइम में, तो पावर क्या होगा? डब्ल्यू डिवाइड बाय टी। पावर का फॉर्मूला डब्ल्यू डिवाइड बाय टी। इज दिस क्लियर? तो ये फॉर्मूला भी आप लोग को याद रखना है। इज दिस क्लियर? ओके। In SI system, work is J, so the unit of power is JS. This is called watt. JS को क्या बोलते हैं हम लोग? Watt भी बोलते हैं, ठीक है? चलो, okay. Next is that you have to write the answer of the following terms. Total 7 terms are there: power, free fall, law of conservation of energy, potential energy, kinetic energy, positive, negative, zero work and work. ये सबके मीनिंग लिखने हैं और मेमोराइज करने हैं एज अ होमवर्क फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।